सपने सजा। जिंदगी के सफर में अपनों को साथ लेकर चलने की खुशी कुछ और ही होती है। शेवरोले, संग रिश्ते चले। अगर आपको पैसा कमाना है अपनी फैमिली के लिए तो जरूर देखिएगा CNBC आवाज पर इन्वेस्टर महाकुंभ। Presented by National Stock Exchange. सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। Co-presented by Trustline. अपने इस खास आयोजन इन्वेस्टर महाकुंभ में हम बात कर रहे हैं कि हम नए निवेशकों को बाजार के साथ कैसे जोड़ें, क्योंकि लंबे समय से यह समृद्धि का एक आजमाया हुआ तरीका है। शेयर बाजार ने पिछले 10 सालों में साल दर साल 17-18% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। यह सब कुछ अब भी भरोसे के साथ इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को लेकर कोई शक किसी को नहीं है। हमारे साथ सेबी चेयरमैन UK सिन्हा, इनाम सिक्योरिटीज के वल्लभ भंसाली और NSE की ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर चित्रा रामाकृष्णा, और अब शो में शामिल करते हैं कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्री श्री वीरप्पा मोइली को भी। मोइली साहब, आपका हमारे लिए समय निकालने के लिए बहुत शुक्रिया। यहां जो चर्चा अभी आपसे आपको जोड़ने के पहले शुरू हुई और उसमें भंसाली साहब ने एक बड़ी बात कही कि गवर्नेंस पॉलिटिकल स्पेस में और कॉर्पोरेट स्पेस में सबसे बड़ा मुद्दा है जिस पर हम लिप सर्विस कर रहे हैं, उसको एड्रेस नहीं कर रहे हैं, इतने असरदार ढंग से नहीं कर रहे हैं कि एक तरह की कॉर्पोरेट डेमोक्रेसी को हम बहाल कर सकें। गवर्नेंस के मुद्दे पर सरकार क्या ठोस काम करेगी, अगर आप अपने विचार हमसे शेयर करें तो। जी मोइली साहब, आपको मेरा सवाल सुनाई पड़ा? No, I could hear you, but you are not put the question. I thought I was just. Oh, okay. So, मैं इसको रिपीट करता हूं सर। क्वेश्चन यही है कि गवर्नेंस का बड़ा मुद्दा है और ये बड़ी फिक्र है जो आर्थिक दुनिया से जुड़े हुए लोग हैं, इसको आप कैसे एड्रेस करने वाले हैं? I totally agree, with what our friends have said. In fact, the government has lot to do in this to ensure, the confidence particularly in the corporate level and also in the market. The corporate governance is maximizing shareholders' value in the corporation while ensuring fairness to all stakeholders. This has got to be done. That very word, the transparency has a lot of meaning, and the shareholders, they know, what they are investing, where they are investing, and what is the real status of that company. So that's why the new company bill which you are bringing out will ensure that that kind of a transparency is provided by every company, and that is one thing. And the raising trust and confidence is important, but at the same time the manipulation in the market by various elements need to be really warned, and that's why we are going to have in fact we are going to have the forewarning system. We would also like to apprise the investors in the share market that what they are doing it and why they are doing it. So mere perception or what I call market tsunami should not affect. That's why I am just thinking, of course, in a very lighter way, we need to work out some sort of a disaster management for tsunami. This is the kind of a turbulence, unfortunately, that can definitely hit the shareholders or the market. We need to protect it, and we need to do that. At the same time, we are also working on the class suits to be filed, because a small shareholder or a few shareholders cannot approach the various agencies and the courts, to protect their rights. That's why we are providing that also in our new bill. So I don't think we should allow the casualties of corporate runs, or the companies run, and so that the entire market can be affected. So these are all some of the initiatives that we have already put in. I know very well the building the confidence in the market, or building the confidence in the respective company or a corporation will become quite important, and we are working in that direction. मोइली साहब, लेकिन एक छोटे इन्वेस्टर को ये बड़ा डर रहता है कि किस कंपनी में कब क्या गड़बड़ निकल जाएगी हमें पता नहीं चलता, तो क्या आपका मंत्रालय
छोटे इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और साथ ही कंपनियों के जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए क्या काम कर रहा है? No, you know that our ministry is the one ministry which has perfected particularly in the transparency and also the e-governance process. That's why the MCA 21 has been already launched and it is in place, and we have put everything on the net, and everybody can access with regard to the particulars. And we have also provided, for the various companies or the corporations to file their returns also on in the online process, and that is also available to everyone. I think with this kind of a total transparency which has been introduced in the ministry, and of course it will definitely provide that kind of a platform for everybody to know what kind of a company they are investing for. जी लेकिन यहाँ पर सिन्हा साहब आपसे ये जानना चाहता हूँ, रिटेल इन्वेस्टर जिस वक्त बाजार से पूरी तरह से दूर है, उसे वापस बाजार में लाने के लिए सेबी क्या कर रही है? रिटेल इन्वेस्टर को बाजार में लाने का काम जो है वो बहुत सरल नहीं है, और इसलिए भी सरल नहीं है कि अभी आप विश्व के बाजारों को देखिए या भारत के बाजार को देखिए तो बाजार में उतार चढ़ाव या जो हम वोलेटिलिटी बोलते हैं अभी काफी है। लॉन्ग टर्म में हम भी जानते हैं, बहुत से लोग जानते हैं कि लॉन्ग टर्म में भारतीय पूंजी बाजार ने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है, और मेरा ये मानना है, सेबी का ये मानना है कि लॉन्ग टर्म में वो फिर वैसा ही रहेगा। लेकिन अभी के माहौल में ये उम्मीद करना कि इन्वेस्टर्स बहुत ही लार्ज नंबर में आ जाएंगे तुरंत, वो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। एक और हमारे प्रयास में शायद कमी रह गई है कि हमने इक्विटी के सेल्स के लिए तो प्रयास किए हैं, लेकिन डेट प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ प्रयास कम हुआ है, फोकस कम रहा है। तो सेबी का ये भी सोचना है कि किस प्रकार से हम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को इनकरेज करें कि वो डेट प्रोडक्ट्स भी ले आए, और उसके लिए अगर कुछ डिस्क्लोजर में सहूलियत देनी है या कुछ और उनको विशेष तौर से कुछ सहूलियत देनी है तो उस पर हम विचार करने को तैयार हैं। आइए अब शो में शामिल करते हैं एक और कैपिटल मार्केट के अत्यंत विश्वसनीय व्यक्ति को, छोटा ट्रेडर हो या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। रमेश दमानी का वो क्या सोचते हैं इसको सब जानना चाहते हैं, उनको लोग फॉलो करना चाहते हैं। दमानी साहब की खासियत यह है कि वो शेयर बाजार में सही कंपनी और सही शेयर को पहचानने में माहिर हैं। दमानी साहब, वक्त निकालने के लिए शुक्रिया आपका। अभी का जो माहौल है उसमें वही एग्जेजरेशन करने की हमको आदत है, या तो बहुत यूफोरिया या बहुत नर्वस। तो अनसर्टेनिटी है, बाजार से दूर रहें, और ऐसा कार्यक्रम हम गलत समय पर कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं शेयर बाजार में आइए, निवेश के दूसरे तरीकों में जाइए। आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहेंगे कि दुनिया को कैसे देखें और अपनी जो बचत है उसको कैसे इस्तेमाल करें। थैंक यू। पहले बहुत बहुत धन्यवाद CNBC आवाज का महाकुंभ का आयोजन करने के लिए। आई थिंक जो हम लोग इंडियन बुल्स हैं, वल्लभ भाई भी इधर हैं, वी आर नॉट बुलिश कि एक क्वार्टर के कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे या एक साल के अच्छे आएंगे। वी आर बुलिश ऑन द ट्रेजेक्ट्री द कंट्री इज गोइंग। जैसे आपको मालूम है 1950 to 1990s इंडिया वाज अ स्लो ग्रोथ इकोनॉमी, 3% ग्रोथ थी हमारी। नाउ आवर ट्रेजेक्ट्री हैज चेंज्ड। इनफैक्ट जो इंडिया को शायद मुकेश भाई ने कहीं अंबानी जी ने काम बोला था कि इंडिया यूज्ड टू बी अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, बट नाउ वी आर कॉल्ड द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। सो देयर इज अ पैराडाइम शिफ्ट टेकिंग प्लेस in the Indian markets, and this is not going to play out over a quarter, over 1 year, over 3 years. It's a long-term story. हर bull market की एक कोई intellectual hypothesis होती है, जैसे 90 का bull market था जो हर्षद मेहता का bull market बोला जाता था, that foreshadowed India's liberalization. The 2000 bull market ने कहा कि इंडिया is going to be a technology superpower. वो दोनों हो चुके। ये जो bull market जो शुरू हुआ था 2003-4 में, जो अभी शायद रखड़ रहा है थोड़ा बहुत, वो बोल रहा है कि इंडिया विल बी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड विद अ ह्यूज कंज्यूमिंग क्लास विच हैज वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट इम्प्लीकेशंस। तो जो आप कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स नीड टू बी एजुकेटेड। जो सिंघवी साहब ने पहले पूछा कि व्हाई आर इन्वेस्टर्स कमिंग बैक, इट्स अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। वी रियली नीड टू encourage people to invest in the India growth story, and I think people who are willing to take a view that India will become the third largest economy in the next 4 or 5 years will, I think, prosper. May not prosper the next 3 weeks or the next 3 months, but I'm very sure the next 3 years they'll be better off. चित्रा जी, यहाँ पर एक सवाल ये है कि हर इन्वेस्टर ये चाहता है कि
मैं 20 साल पहले या 30 साल पहले किसी इन्फोसिस, रिलायंस या विप्रो में पैसा लगा पाता तो आज मेरी वेल्थ कई गुना हो जाती। ऐसे में ये बहुत जरूरी है बाजार के लिए कि छोटी कंपनियां भी बाजार में आए जो आगे चलकर काफी बड़ी बन सके। एनएसई क्या कर रही है ऐसा कुछ जिससे कि छोटी कंपनियों को एक प्लेटफॉर्म मिल सके इस बाजार में आने के और इन्वेस्टर्स को मौका मिल सके उनमें पैसा लगाने का? एक्चुअली ये क्वेश्चन तो बहुत ही कॉन्टेक्सचुअल है क्योंकि इनफैक्ट येस्टरडे हमें अप्रूवल मिला है एसएमई प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की और बीएसई इज ऑलरेडी बीन अप्रूव्ड। सो ये सेबी के पॉलिसी डायरेक्शन प्रिसाइसली ऑन द सेम लाइंस एज यू आर सजेस्टिंग कि एसएमई कंपनीज को भी कैपिटल रेज करने की इंफ्रास्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड करना चाहिए एक्सचेंजेस में। लेकिन इनके लिए जो इकोसिस्टम बनाना है वो थोड़ा अलग से है। It cannot be the same way that the main board, the levers and the Tatas have raised capital in the country. So the SME platform that NSE is working on is working precisely on this basis कि छोटे issuers say 10 to 50 crores, 10 to 100 crore capital raising के लिए how do you provide an efficient platform by which they can raise money? The same kind of cost of public issue which is there, for example, a large issue cannot work for a small issue. So for a small issue, how do you make the process of issuance efficient? SEBI has already mandated market making for the scripts that are coming on the SME. All these are measures to infuse confidence in the issuers that they can raise money from this platform. Also to provide confidence to investors who come into these companies that these are here for the long run. These will be liquid companies. Many of them will have the potential to become large and migrate to the main board over a period of time. So this is exactly what the SME platform is supposed to deliver. And we have been working with venture capitalists, with PE funds, with large institutions like banks and others who have a long history of working with SME companies to understand what their problems are and accordingly bring that into the mechanism for the SME platform. भंसाली साहब, आपने हालांकि बहुत एक बड़ा दार्शनिक मुद्दा रखा और जिसको अगर ये लोग अडॉप्ट कर लें, जितने भी स्टेक होल्डर हैं, तो एक बदलाव आएगा। लेकिन अभी का जो हमारा एक आम निवेशक है उसके मन में सवाल ये है कि अभी मान लीजिए मैं एक शुरुआत करना चाहता हूं तो मैं दुनिया को कैसे देखूं, अप्रोच कैसे करूं, जो मैंने दमानी साहब से पूछा। आपका एक आउटलुक जानना चाहूंगा, आपका असेसमेंट क्या है हमारी दुनिया को लेकर, हमारे इस वक्त के माहौल को भारत में लेकर? मैं समझता हूं कुल मिलाकर विश्व विकास की तरफ जा रहा है। शायद एक लालच की लहर जिसमें हम सब डूब गए थे, वह लहर थम चुकी है और हम सब जाग गए। आज क्या हो रहा है मैं उसे इतनी उसका मायने नहीं देखता, लेकिन हम किस दिशा में जा रहे हैं, दिशा बहुत अच्छी लग रही है कि हम कमर कसना सीख रहे हैं, हम बचत करना सीख रहे हैं। जो इनोवेशन का इंजन रुक गया था दुनिया में, वो इनोवेशन जब तकलीफ आती है तभी आदमी इनोवेट करता है। तो पूरी दुनिया के अंदर इनोवेशन की एक बड़ी लहर आएगी। यूरोप के देशों के और यूरोप का नेतृत्व में अगर हम देखें तो इतने देश एक दूसरे के साथ खड़े रहने के लिए कितनी तत्परता दिखा रहे हैं वहां के राजनीतिज्ञ। मैंने कई लोगों के स्टेटमेंट देखे हैं कि हमें कोई चिंता नहीं है अगर हम दोबारा चुनाव लड़कर नहीं जीत पाएंगे, लेकिन आज जो सही है हम वही काम करेंगे। और आप देख रहे हैं कि तमाम देशों के अंदर ऐसे हालात नजर आ रहे हैं। तो मैं कुल मिला के विश्व के लिए काफी आशान्वित हूं। होगा यह कि पिछले आने वाले 3-4 सालों में ग्रोथ जो दुनिया का जो 3-4% 4.5% तक चला गया था, वो हो सकता है थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन क्वालिटी ऑफ ग्रोथ बहुत सुधर जाएगा। वैसे ही भारत के लिए तो मैं हमेशा आशान्वित हूं। भारत के कैपिटल मार्केट में ही हम जन्मे बड़े हुए और सब कुछ यही कमाया है। इसलिए मैं तो ये समझता ही हूं कि जो लोग इसमें मेहनत करते हैं, जो इसकी गहराई में जाते हैं, उनको तो मोती मिलते ही हैं। गहरे पानी पैठ वाली प्रश्न वाली बात है यहाँ पे। तो आगे आने वाले सालों में, जैसे रमेश जी ने बहुत ठीक कहा कि हम बहुत बड़ी इकोनॉमी होंगे ही, कुछ भी हो जाए, उसकी गवर्नेंस बढ़िया होगी तो सोने में सुहागा हो जाएगा। बात उसकी चल रही है कि जो मौका है, इस मौके को हम किस तरह शानदार बनाएं। तो आगे आज एक बात मैं जो कहना चाहूंगा, वो केवल आज के मार्केट में नहीं, हर मार्केट में संगत है, पर यह कि इक्विटी बिजनेस के बारे में होती है, बिजनेस कंपटीशन के बारे में होता है। कंपटीशन में बहुत थोड़े लोग ही जीत पाते हैं। तो आप जब किसी कंपनी में पैसा लगाते हो और उसकी कंपेटिटिवनेस को अगर आप ठीक से स्टडी नहीं कर सकते हो, तो आपने एक दाव लगाया है।
तो बस बात इतनी सी आ जाती है कि बहुत कम कंपनियां ही हैं जो इन्फोसिस, विप्रो वगैरह जो आपने नाम कहे वो बन सकती है। आप में क्या इतनी समझ है और क्या इतना धीरज है? जैसे रमेश जी ने कहा कि आप 3 सप्ताह के लिए हो कि 3 महीने के लिए हो, आज हमारे ख्याल से हम कुछ परफॉर्मेंस पैरामीटर्स भी एस्टैब्लिश हो रहे हैं, वो बहुत शॉर्ट टर्म है। तो ये चीज लॉन्ग टर्म की है और लॉन्ग टर्म ढंग से देखेंगे, कंपेटिटिवनेस इवेल्युएट करेंगे, धीरज रखेंगे। कैपिटल मार्केट से बढ़िया तो कोई मार्केट ही नहीं है। बिल्कुल, इस बात पे हम भी जोर देना चाहते हैं कि हम तो दिन भर शेयर बाजार का चैनल चलाते हैं, दिन भर ट्रेडिंग की बात करते रहते हैं, लेकिन ये कार्यक्रम उन नए निवेशकों के लिए है या उन मौजूदा निवेशकों के लिए है जिनको कुछ खट्टे मीठे अनुभव हुए होंगे, और हम उनको ये कहना चाहते हैं कि हम अनुशासित इन्वेस्टमेंट की, डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट की, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। हो सकता है 3 महीने के बाद आज आप पैसा लगाएं और कुछ आपकी गड़बड़ हो जाए, उनके लिए कार्यक्रम नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये राइडर लगाना बहुत जरूरी है। और यही समझ और यही काबिलियत हम हमारे निवेशकों को आज दिन भर में बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन्वेस्टर महाकुंभ के दौरान दिन भर में आपके लिए भी है कमाई करने के शानदार मौके। आपको देना है बस एक छोटे से आसान सवाल का जवाब और आप जीत सकते हैं 75,000 रुपए के सोने के सिक्के हर एक घंटे। तो इस घंटे का सवाल नोट कीजिए। आपको बताना यह है कि शेयर बाजार के रेगुलेटर सेबी के चेयरमैन का पूरा नाम क्या है। आपके ऑप्शंस हैं यशवंत सिन्हा, यूके सिन्हा और सी शत्रुघ्न सिन्हा। जवाब भेजने के लिए आप अपने मोबाइल फोन के मैसेज बॉक्स में जाइए, टाइप कीजिए IMK1, स्पेस दीजिए और A, B या C, जिसमें आपको जो सही जवाब लगे वो ऑप्शन लिखकर आप हमें भेज दें 51818 पर। पब्लिक प्रोविडेंट फंड ये तय कमाई का एक सुरक्षित तरीका है, लेकिन इसमें पैसा कम से कम 7 साल के लिए लॉक रहता है। कम से कम 500 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 70,000 रुपए हर साल जमा किए जा सकते हैं। PPF खाता बैंक में खोला जाता है और हर साल इसमें जमा की गई रकम पर सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट भी मिलती है। क्या यार, छिलका तो निकाल के दिया होता। क्या है ये सब? पकाओ की चक चक चुक चुक चुक। अब यही सब देखोगे या कुछ नया देखोगे? नो यू टेल मी। आ गया नया हिस्ट्री चैनल, जिसे देखकर धड़कन बढ़ेगी, लगेगा बाकी सब फीका। ट्यून इन कीजिए, कुछ नया देखो, हिस्ट्री बनते देखो। जब वीरू घर आते हैं तो बहुत तोड़फोड़ मचाते हैं। मत पूछो जी। अरे बेटी, इस भोड़ू का तोड़ है हमारे पास। जेके सुपर सीमेंट, विश्वास है इसमें कुछ खास है। इवेंट मैनेजमेंट सेवाओं पर आप जो सेवा कर देते हैं, उससे लाखों के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट सेवाएं प्रदान करने में सहायता